Good morning, students. Hope you all are fit and fine and doing well at your home. Friends, today we will continue the 8th chapter of your English grammar book. Its name is pronouns. Okay, and in this chapter, today we will read about demonstrative pronouns. Okay, yes, student. First of all, I want to clear you what is demonstrative pronouns. Yes, beta. Demonstrative pronouns, it means to say those type of pronouns in which we directly point out a object. Okay, it means to say directly point out, it means to say कि बेटा जैसे like this, that, these, those, these words. Okay, in these words we directly जैसे कि like an example, those are apple trees. Okay, these are pencils. Okay, in which we are directly पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट, एक मतलब ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली पॉइंट आउट करें, जैसे कि दीज आर बुक्स. जैसे कि ये देखिए आप बुक्स रखी हुई हैं तो हम लोग बोलेंगे दीज आर बुक्स, दीज आर सेलिब्रेशंस, दीज आर डेकोरेशंस, दोज आर एप्पल्स, मतलब वो एप्पल हैं, दिस इज अ पेन, दैट इज अ पेंसिल, लाइक दीज थिंग्स. ओके, and we will also learn today about interrogative pronouns. Okay, in what, yes, secondly I want to clear you what is interrogative pronoun. Interrogative pronoun, it means to say in which pronoun that we ask question to any other persons. Like questions, it means to say what is your name, okay, in which class do you study, okay, and what is your father's name, like these type of questions. These type of questions you can see in your textbook also. Okay, yes, students, and we will also today learn about possessive pronouns. Possessive pronouns, beta. Possessive pronouns, it means to say कि in which sentence you show your possessiveness. Possessiveness means बेटा अधिकार, आपका अधिकार जो होता है वो. Possessiveness to any object या any other things. Okay, like this type से जैसे कि this house is mine, तो mine word is show possessiveness of your in this house. इस house पे आपका possessiveness show कर रहा है mine word. Okay, this house mine, this car is mine, like this types. Okay, yes, student, let's start the chapter. Yes, beta, demonstrative pronouns. Okay, yes, first of all read these sentences carefully. This is the teacher's house. This is, okay, the word this and those and these and that, these words show the demonstrative of pronouns. Okay, this is a teacher's house, those are apples, these are your clothes, that is a pencil and नोट क्लीन. यस बेटा, जैसे कि ये क्या है, एक टीचर का घर है. ठीक है, अगर आपके सामने कोई व्रिस्ट वॉच रखी है तो दिस इज अ व्रिस्ट वॉच, आप ऐसे बोलेंगे. दिस इज अ पेंसिल, ठीक है, कि ये एक पेंसिल है, वो एप्पल है, ठीक है, ये सारे एप्पल हैं, वो मेरा घर है. डैट इज़ माई हाउस. ऐसे करके जब आप बोलते हैं ना, जब आप क्या शो कर रहे होते हैं, कोई चीज़ को, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को आप शो कर रहे थे, कोई ऑब्जेक्ट के बारे में डिफाइन कर रहे थे, कोई ऑब्जेक्ट के बारे में आप बता रहे होते हैं, ठीक है, वो चीज़ होती है ना जो, वो कहलाती है आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में. आप इसमें कैसे करते हैं बेटा, जैसे कि अगर आप किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे आप किसी एप्पल ट्री के बारे में, जैसे बहुत ईजी एग्जांपल लेते हैं हम लोग आपके स्कूल बैग का. आप अपने स्कूल बैग के बारे में बात करें तो दिस इज़ माई स्कूल बैग, आप ऐसे बोलोगे. और फिर अगर दूसरा स्कूल बैग बगल में रखा हुआ है तो आप बोलोगे डैट स्कूल. जब आप उसके मतलब उसके बारे में आइडेंटिफाई करोगे, उसके बारे में क्लैरिफाई करोगे, तो आप क्या बोलोगे कि ये मेरा स्कूल बैग है, और वो मतलब डैट, ठीक है, वो मेरे फ्रेंड का स्कूल बैग है. ऐसे करके बोलोगे ना आप. तो जब आप ये वो सब ऐसे करके जब ये वर्ड्स को जब आप यूज़ करते हो, वो, वे, ये सब, ये, तो ये जो ये वो जो वर्ड्स है ना, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं. प्रोनाउन कहाँ, जो नाउन की जगह पर यूज़ किया जाता है, ठीक है ना. तो अगर आप ये बोलोगे कि सपोज नाउन कैसे, राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है, आपने राम का बोला. अब हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, तो राम एक अच्छा लड़का है. अब आप बाद में बोलोगे वो 2nd क्लास में पढ़ता है, ठीक है, ऐसे बोलोगे ना. ऐसे तो नहीं बोलोगे राम 2nd क्लास में पढ़ता है, राम देरी से उठता है, राम बहुत लेजी है. बार बार राम राम नहीं बोलोगे, आप उसके बाद वो लगाओगे. तो जब आप वो लगाओगे ह्यूमन बीइंग के लिए तो आप ही लगाओगे, ठीक है. ऐसे ही थिंग्स की बारी आती है, जब आप नॉन लिविंग थिंग के लिए लगाओगे तो आप ही वर्ड यूज़ नहीं करोगे, दिस, दैट, ये वर्ड यूज़ करोगे, ठीक है. अब देखिए यहाँ पर
वी यूज दिस एंड डैट टू रेफर थिंग्स डैट आर नियर अस. हम दिस और दीज, याद रखना बेटा, दिस और दीज, ये दो वर्ड हम कब रेफर करते हैं? जब चीज़ें हमारे पास में होती हैं. जैसे कि दिस इज माई बुक, दीज आर फ्लावर्स, दीज आर टॉफीज, दीज आर चॉकलेट्स. ठीक है. अदरवाइज दिस इज अ कोल्ड ड्रिंक बॉटल. ठीक है. तो ये जब हम दिस और दीज, ये दोनों वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब चीज़ें हमारे पास होती है और हमें उनके बारे में बताना होता है. लेकिन डैट और दोज, ये दोनों वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब चीज़ें हमसे थोड़ी दूर रखी होती हैं. जैसे कि दोज आर ट्रीज, मतलब जैसे आपके सामने बहुत दूर ट्री हैं बहुत सारे, और आप किसी को बता रहे हो कि वो पेड़ हैं, तो आप दोज वर्ड यूज़ करोगे. ठीक है. और दीज कब यूज़ करोगे? जब वो पेड़ आपके जस्ट पास में है, सामने ही है. ठीक है. इस टाइप से. तो डैट इज अ पेंसिल, जब वो पेंसिल दूर रखी है तो आप बताओगे डैट. जब वो आपसे दूर है, पास में है, तो दिस. ठीक है बेटा. ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई. अब हम लोग इसका क्वेश्चन करते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. ओके. ए क्या है? डैश आर माई क्लासमेट्स स्टैंडिंग एट द बस स्टैंड. अब देखो बेटा, यहाँ पर देखो, अब ये बता रहा है कि वो मेरे क्लासमेट हैं जो कि बस स्टैंड पे खड़े हैं. यानी आप कहीं बस स्टैंड के दूसरी साइड खड़े हो और आप उनको आइडेंटिफाई, उनको बता रहे हो उनके बारे में कि वो मेरे क्लासमेट है. तो बताओ, पास में है या दूर में है? ऑब्वियसली दूर में है. जब वो दूर में है तो आप क्या बोलोगे? दोज आर माई क्लासमेट्स, वो मेरे क्लासमेट्स हैं जो वहाँ बस स्टैंड पे खड़े हैं. ठीक है. अब दीज आर माई पैट्स, आई एम टेकिंग दैम फॉर अ वॉक. अब देखो बेटा, इसने दीज क्यों मैंने फिल किया यहाँ पर? क्योंकि बेटा उसके पैट्स उसके साथ थे, उसके पालतू जानवर, जो कुत्ते बिल्ली जो भी थे. बोला ये मेरे पालतू जानवर है जिनको मैं वॉक पे ले जा रहा हूँ, तो उसके पास में थे ना, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया? दीज. यस. डैश इज माई फेवरेट वॉच, आई ऑलवेज वेयर इट. अब बताओ बेटा, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा दिस. क्यों? क्योंकि उसने पहनी हुई है वॉच. उसने बोला दिस इज़ माई फेवरेट वॉच, ये मेरी फेवरेट वॉच है. आई ऑलवेज वेयर इट, मैं इसको हमेशा पहनता हूँ, यानी उसको पहनना पसंद करता है वो. ठीक है. यस. नेक्स्ट इज डैश इज बैंड न्यू काइट. ठीक है. सॉरी, ब्रांड न्यू काइट स्टक ऑन दी ट्री. यस. डैट इज अ ब्रांड न्यू काइट. वो जब जो जैसे अब नीचे खड़ा है पेड़ से और वो ऊपर फंसी हुई है काइट, तो इसलिए वो क्या बोला? डैट. वो एक ब्रांड न्यू काइट है. ब्रांड न्यू मतलब अभी जस्ट खरीदी हो, जैसे आपने एकदम न्यू काइट है जो कि पेड़ पर स्टक हो रखी है. स्टक मतलब फंस जाना, पेड़ पे फंसी हुई है. ओके. ओके बेटा. यस. अब इसको छोड़ दो आप, फोर्थ क्वेश्चन को, इसको मैंने क्रॉस किया हुआ है. ठीक है. इसको नहीं करना आपको. कम टू द नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी मैंने अभी बताया था. जैसे आप क्वेश्चन पूछते हो किसी से, और ये क्वेश्चन आपने नॉर्मली अपनी नोटबुक्स या अपनी बुक्स के पीछे देखे होंगे, है ना, रीडर बुक्स के पीछे. तो इसका हम लोग देखो, व्हाट विल यू लाइक टू हैव फॉर ब्रेकफास्ट. आप ब्रेकफास्ट में क्या लेना पसंद करेंगे? तो इसलिए विच इज़ योर पपी अमोंग दिस. यस बेटा, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, विच वर्ड हम कब यूज़ करते हैं? विच हम नॉर्मली बेटा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ नहीं करते. याद रखना, किसके लिए? नॉन लिविंग. ठीक है. लेकिन इसकी ये कंडीशन है, हम लिविंग थिंग के लिए भी यूज़ करते हैं. कब करते हैं? जैसे कोई भीड़ है, भीड़ में आप बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, उसमें से एक आपका भाई खड़ा है, तो बोलोगे, आप क्या बोलोगे? विच वन इज़ माई ब्रदर हु इज स्टैंडिंग इन रेड शर्ट. ये वो मेरा भाई है जो कि किस रेड शर्ट में खड़ा हुआ है. तो ये तब आप विच, जब मतलब कहने का मतलब समझ में आया कि जब आपको सिलेक्शन करना हो, 10 लोगों के बीच में से किसी एक का सिलेक्शन करना हो, तो आप विच वर्ड यूज़ करोगे. अदरवाइज ह्यूमन बीइंग के लिए कभी भी विच वर्ड यूज़ नहीं करोगे. आप हमेशा किसके लिए विच वर्ड यूज़ करोगे? नॉन लिविंग थिंग के लिए. हु, WHO, हु किसके लिए यूज़ करोगे? ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़ करोगे. व्हाट, नॉन लिविंग थिंग के लिए, चीज़ों के लिए यूज़ करोगे. ठीक है. यस बेटा. देखो, द हाईलाइटेड वर्ड, सॉरी, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस. क्वेश्चन पूछने के लिए होते हैं. अब देखिए बेटा, यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस फिल करने हैं. जैसे नंबर ए, डैश मेक्स यू लाफ. व्हाट मेक्स यू लाफ, क्या तुम्हें खुशी देता है? लाफ मतलब हंसना, तो क्या तुम्हें हंसाता है? हंसाना नहीं, मतलब क्या चीज़ है जो तुम्हें खुशी देती है? किसी के साथ किसी का प्यार, या किसी की दोस्ती, या कोई बुक, या कोई मूवी. क्या चीज़ है जो तुम्हें खुशी देती है? Whose are these shoes? किसके शूज़ हैं ये? ओके.
विच इज़ योर कार अमंग दोज पार्क्ड इन द लेन। यस, ये लेन मतलब लाइन में जो कार पार्क्ड है इनमें से तुम्हारी कार कौन सी है, वो चूज कर रहा है बेटा उन कार में से, ठीक है। तो विच, ठीक है। हु वॉज अपॉइंटेड द कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन अपॉइंट हुआ है। देखो हु मैंने कब बताया था ना ह्यूमन बींग के लिए, तो हु ह्यूमन बींग के लिए यहाँ पे यूज किया गया। ओके ओके बेटा, नेक्स्ट इज, इसको भी फिर आप लोग छोड़ दो, ये आपके काम का नहीं है, ठीक है। अब रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन भी बेटा आपके कोर्स में नहीं है, एम्फेटिक प्रोनाउंस भी नहीं है, इसलिए मैंने ये भी नहीं करवाया। अब लास्ट इज पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को समझाया था पजेसिव प्रोनाउन मतलब अपना अधिकार दिखाते हैं जब आप किसी पर, तो पजेसिव प्रोनाउन आर यूज टू टॉक अबाउट द थिंग्स दैट बिलोंग्स टू द पीपल। किन के लिए पजेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं, वो चीज़ों के लिए जो कि उस आदमी से बिलोंग करती हैं, ठीक है, उस आदमी से संबंध रखती हैं, कहने का मतलब, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पे देखो पर्सनल प्रोनाउन आई मी, ठीक है। तो मैंने बताया था ना कि पजेसिव जब इनका बनता है आई और मी का, तो क्या बनता है माइन, ठीक है। ही या शी या हिम और हर, ये हिम तो लड़के के लिए, हर लड़की के लिए होता है, मैंने आपको बता रखा है। ही लड़के के लिए, शी लड़की के लिए, लेकिन जब इनका पजेसिव बनता है तो क्या बनता है हिज और हर्स, ठीक है। वी अस, दे और देम, ठीक है। वी और अस और दे और देम का जब पजेसिव बनता है तो वी और अस का क्या बनता है आर्स, और दे और देम का क्या बनता है देयर्स। बेटा ये टेबल आपको लर्न करना पड़ेगा, ये कंपल्सरी है अगर आपको पजेसिव प्रोनाउन करने हैं तो। ओके, इफ सॉरी यू का क्या बनता है योर्स, इट का क्या बनता है इट्स। ओके, ये पजेसिव में चेंज और कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखो बेटा इनके बिहाफ पे मैंने फिल किया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट पजेसिवनेस। देखो दिस इज नॉट क्रियोन, ये क्रियोन नहीं है। क्रियोन मतलब बेटा वो जो कलर्स होते हैं ना आप लोगों के, वो इट इज़ योर्स, ठीक है। दिस इज़ नॉट क्रायोन, अच्छा दिस इज़ नॉट माई क्रियोन, सॉरी मेरे क्रियोन नहीं है, इट इज़ योर्स। दिस इज़ नॉट माई क्रियोन्स, ये मेरे क्रियोन्स नहीं है, मेरे कलर्स नहीं है, दिस इज़ योर्स, ये तुम्हारे हैं। तो उनका अधिकार दिखाया गया कि वो क्रियोन्स किसके हैं, उसके हैं, उनका उस इंसान का अधिकार है उन क्रियोन्स पेंसिल्स पर, ठीक है, उन कलर्स पर, सॉरी। सेकेंड इज वी बॉट दिस हाउस लास्ट ईयर, हमने लास्ट ईयर ये घर खरीदा था, ठीक है। इट इज़ आर्स, ये हमारा है, ठीक है, ये घर हमने खरीदा था लास्ट ईयर, अब ये हमारा है, तेरा अधिकार नहीं है इस पर, कहने का मतलब ऐसे। ओके, नेक्स्ट इज दिस बुक बिलोंग्स टू मदर, इट इज़ हर्स, ये बुक किसकी है, किससे बिलोंग करती है, मदर से संबंध रखती है, मम्मा से संबंध रखती है, मतलब मम्मा की है, तो इट इज़ हर्स, ये उनकी है। देखो हर का क्या बन गया हर्स, आर का क्या बन गया आर्स, योर का क्या बन गया, सॉरी उसका यू का क्या बन गया योर्स, ठीक है। प्लीज पास मी दोज कीज, कृपया मुझे वो की मतलब वो चाबियां पास कर दो, ठीक है। दे आर माइन, वो मेरी हैं। माइन मतलब माई का क्या, दे आर माई नहीं बोला, माई का क्या बन गया माइन, दे आर माइन। ओके, यस। ई वाला सहारा इज लुकिंग फॉर हर पेन, सहारा क्या ढूंढ रही है बेटा, अपना पेन ढूंढ रही है। इट कुड बी हर्स, वो शायद उसका हो सकता है, वो शायद उसका है, मतलब जो लड़की जो ढूंढ रही है वो शायद उसका पेन है, ठीक है। कुड मतलब हो सकता है। वी फिनिश्ड आवर प्रोजेक्ट बट दे हैवंट फिनिश्ड देयर्स, हमने अपना प्रोजेक्ट खत्म कर लिया बट उन्होंने अपना प्रोजेक्ट खत्म नहीं किया है। ओके बेटा, okay students, that's all for today. Learn this table and do this work in your book only. Okay, and if you any problem then contact to me. Okay, thank you and have a nice day beta.